Good morning, everybody. So, in that last class, we were studied about the part 1 of chapter Living World. So, today we will finish off this Living World chapter. So, let's discuss about the biological classification of some organisms, some plants and animals. So, here there are some examples that is given in your NCERT book. So, let's start with your common name. Here there are the four common names of organisms. First one is man, housefly, mango and wheat. So, the biological name or scientific name, we can say that scientific. The scientific name of man is Homo sapiens. As I have earlier told you that we have to underline it separately. Homo separately and sapiens separately. And the name Homo will be started with capital letter and sapiens will be started with small letter. Okay. Similarly, the scientific name of housefly is Musca domestica. Similarly, all the rules of nomenclature will be applicable. Then here comes your mango, Mangifera indica, and wheat, it is Triticum haestivum. Okay. Now comes to your genus. So here itself it's written the genus of man is Homo, the genus of housefly is Musca, the genus of mango is Mangifera, and the genus of wheat is Triticum. Now family, जीनस के जो ऊपर का हायर की है वो क्या है, फैमिली. इसका फैमिली क्या है मैन का, होमोनिडाई. ये याद रखना, होमोनिडाई. हाउस फ्लाई का क्या है, मुस्सिडाई. ए ये लास्ट में तुम्हारा आएगा. ये जो फैमिली है कैसे पता चलेगा, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फैमिली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर. सो ये जो ए फैमिली के बाद में ये ए तुम्हारा आता है. सो हाउस फ्लाई का फैमिली क्या है, मुस्सिडाई. देन मैंगो अनाकार्डियासी एंड व्हीट का क्या है, ओआसी. ओके. नाउ कम्स टू योर ऑर्डर. ऑर्डर क्या है उसका, प्राइमाटा. पहले भी मैंने बोला था. इसका क्या है, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, मैंगो का सापिंडेल्स एंड व्हीट का क्या है, पॉइल्स. ये याद रखना, ये जो लास्ट में एलियस रहेगा तुम्हारा. इफ वी आर मेंशनिंग एनी ऑर्डर ऑफ एनी प्लांट, देन जो लास्ट में तुम्हारा एलईएस ये तुम्हारा रहता है. नाउ योर कम्स योर क्लास. मैन का क्लास क्या है, मामालिया, बिकॉज वी ऑल हैव मामरी प्लांट्स, वी गिव मिल्क टू आवर इन्फेंट्स. हाउसफ्लाई का क्या है, इंसेक्टा ग्रुप. Remember this insecta group is the most taxonomical rich group. That means in every 10 animal 7 are your insects. Now mango का क्या है, dicotyledonous, because it had 2 cotyledons. And wheat का क्या है, monocotyledonous, because it has 1 cotyledon. Now phylum, or in case of plant we can say it's division. Man का phylum क्या है, chordata, because we all have notochord. Housefly का क्या है, arthropoda, because it has jointed appendages. Mango का क्या है, angiospermae, as well as wheat का भी angiospermae. That means these were covert seeded plants. So now we will discuss about your taxonomical studies. So these taxonomical studies were more commonly used in your agricultural sectors, forestry, industrial sectors, bioresources and diversity. Already I have discussed the steps of taxonomy, that is identification, classification, characterization, nomenclature and all. So now the question arises, suppose I am getting one specimen. So how can I get the specimen? So I can get the specimen by field or from anywhere.
After the collection of specimen, I can directly identify on field. I can directly identify it on the field, or I can take it to the laboratory. मैं laboratory को उसको ला सकता हूँ. After bringing to your laboratory, then there are various methods nowadays: cytotaxonomy, chemotaxonomy, molecular taxonomy, and apart from these, conventional taxonomical processes are also used. So this is the whole process of our taxonomical system. ये जो सिस्टम ऐसे ही हमारा चलता है. उसके बाद हम देखते हैं ये जो taxonomical प्रोसेस में क्या क्या चीज है जो हेल्प करते हैं. Taxonomic aids. ये taxonomic aids क्या है? Now these are techniques, procedures and stored information. Techniques, procedures and stored information which we commonly used in taxonomy. So टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक है हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका कलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या है, ये सब हमको पता चलना चाहिए. देन प्रोसीड्यूर्स, देन इंफॉर्मेशन. ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ये कहाँ रह सकता है? ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इट मे बी इन हर्बारियम, then botanical garden, then museum, then your zoological park or zoo, then key. Apart from these five, the other taxonomical aids are flora, manuals, catalogs, flora, manuals, catalogs, monographs. These are all other. Monograph we can write here also. Monographs. But these five are commonly used. So now we will discuss one by one. So let's start it with herbarium. ये नाम से पता चल रहा है हर्बारियम. दैट मीन्स द टर्म हर्बारियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हर्ब. हर्ब का मतलब क्या है ना? द प्लांट्स आर जनरली क्लासिफाइड थ्री टाइप्स. हर्ब्स बहुत छोटा छोटा है, उसके बाद श्रब्स एंड बड़ा बड़ा है, ट्रीज. सो हर्बारियम का दैट मीन इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स. सो हाउ द हर्बारियम इज प्रिपेयर्ड? नाउ इट इज ए रिपोजिटरी और storehouse or repository of plant specimens. Repository of plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet that are collected. पहला वाला कलेक्शन है, उसके बाद उसको ड्राई करना पड़ेगा, देन प्रेसिंग, आफ्टर दैट
its preserved one seeds. So actually how it is prepared? So how it is prepared? ये जो सीड है, इस सीड का एक ऐसा सीड रहेगा, इस सीड का साइज क्या रहेगा ना 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, ये सीड का साइज रहेगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर एक लेबल रहेगा। ये लेबल में क्या क्या लिखा होगा? फर्स्ट वन इज प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। सेकेंड वन इज डेट, डेट ऑफ कलेक्शन। थर्ड वन इज कलेक्टर्स नेम, fourth one is English name of the specimen, fourth one local or vernacular name, local or vernacular name of the specimen। उसके बाद फिफ्थ में क्या रहेगा? साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम रहेगा। ये जो तुम्हारा लेबल रहेगा, ये लेबल का कितना साइज रहेगा? 12 इंटू 7 सेंटीमीटर, 12 इंटू 7 सेंटीमीटर। ये टोटल शीट का साइज क्या रहेगा तुम्हारा? 41 इंटू 29 सेंटीमीटर। ये डाटा को याद रखना। सो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो चीज एंड इट शुड बी अरेंज्ड प्रॉपर्ली इन ए टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल ऑर्डर। टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है उसी से इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। ये चीज हमको जरूरत है। इफ somebody founds or somebody finds another specimen or similar type of any plant, then he or she must go to some herbarium, then he can clearly see its leaf, its venation pattern, maybe some flowers or any other plant parts. Generally leaves are used in your herbarium seeds, so you can just match and check all these things. So this is all about your herbarium. So now we look about your botanical gardens. बॉटनिकल गार्डन्स, इसका मतलब क्या है ना? दीज आर द गार्डन्स, ये कुछ गार्डन्स है जहां पे क्या होता है ना, कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स, कलेक्शंस ऑफ वेराइटी टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉर रेफरेंस पर्पज। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में एक बॉटनिकल गार्डन है, नंदनकानन बॉटनिकल गार्डन। वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारे वो जो ट्री है वो वहां वो कोई दूसरे जगह से लेके या फिर कुछ इंडिजिनस भी होंगे उसको प्लांट करते हैं। वो कैसे हमको हेल्प करता है टैक्सोनॉमी में। और उस ट्री में क्या होता है ना, सपोज उस ट्री में उसका फैमिली क्या है एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है। With local name. Sometimes it's written in local name or sometimes it is also not there. But family name and scientific name must be there. So ये कैसे help करता है? Suppose I am going to any botanical garden and I am seeing, oh, this is a mango tree. I have not seen any mango tree in my past. So there, okay, this is mango tree. Its fruits like are these and its leaves like are these and it's branched or something else. So I have a thorough, suppose it's strawberry, apple, grapes, so easily I can go and see there
No, these are the trees. At least I will get some idea about all these trees, and in future again if I am seeing some of the trees, so I can clearly identify all of them. So the botanical garden helps in this manner for taxonomical purposes. After botanical garden, there comes your museum. This is also important aspect. Museum की तो एक्चुअली बहुत सारे, लेकिन इसको बोलते हैं हम म्यूजियम में क्या है, म्यूजियम एंड योर जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों में फर्क क्या है म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क में? म्यूजियम में both plant and animal specimens are there, but in zoological park only zoological specimens or only animal specimens are there. In zoological park we will find only live specimens, no dead specimens, no fossils, nothing else. But in museum we will find dead specimens, fossils, or other skeletons, some flow charts also there. So we will discuss in detail about all these things. So now museum. Museum क्या है? Now we can say that it's a collection of preserved plants and collection of preserved plants and animals. वहां पे क्या होता है ना, preserved, that means these all were dead. So इसका कुछ टेक्निक्स है ये म्यूजियम में प्रिजर्व करने के लिए. जो पहला वाला टेक्निक क्या है ना, फॉर एग्जांपल स्मॉल एनिमल्स लाइक वन snakes or any other fishes, small fish or any frog or any invertebrates, they were stored in 10% formalin or ethanol. Generally these are small animals like invertebrates, some fishes, some snakes. दूसरा टेक्निक क्या है, if the animal is large, for example it's a tiger, suppose कहीं पे एक टाइगर मर गया या फिर कहीं पे एक डियर मर गया, उसको ले आते हैं, उसको स्टफिंग करते हैं. स्टफिंग कैसा होता है ना, स्टफिंग में तुम्हारा वुड डस्ट और सैंड, वुड डस्ट, सैंड, ये सब लगा के तुम्हारा क्या करते हैं ना, स्टफिंग करते हैं. वो स्टफिंग कैसे होता है ना, ये जो वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल साइड को उसको इसे निकाल देते हैं, उसके बाद उसका जो फ्लैश है वो बाहर निकाल देते हैं, एंड देयर वो जो ये जो तुम्हारा वुड डस्ट है या फिर सैंड से इसको भर्ती कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट दे शू इट अप. ओके, नाउ इंसेक्ट्स कैसे, उसको इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं. इंसेक्ट बॉक्स कैसे होता है, इंसेक्ट बॉक्स में ना पिनिंग, उसको पिनिंग करते हैं. पिनिंग कैसे होता है, लेट्स से इट्स ए बटरफ्लाई का ये जो उसका विंग होगा ना, चारों तरफ से उसको एक एक करके पिन करके ये फुल स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे वो बहुत दिन तक रहेगा. और कैसे होता है ना, स्केलेटन्स भी कुछ रहते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ स्केलेटन्स भी रहता है. सो कैसा स्केलेटन्स, फॉर एग्जांपल योर व्हेल, योर एलिफेंट, जो बड़ा बड़ा एनिमल है जिसको डायरेक्टली हम लेके म्यूजियम में नहीं घुसा सकते, उसका स्केलेटन हम रखते हैं या फिर उसका रेफरेंस पर्पज के लिए. हम वहां पे हमको व्हेल को देखने के लिए या फिर शार्क उसको देखने के लिए मुझे समुद्र में जाना पड़ेगा, लेकिन if I am going to any museum then I can say no, okay, well, okay, its diameter is like this, its length is like this, at least I will get some idea seeing all these skeletons. उसके बाद क्या होता है ना, कुछ fossils भी है. Some fossilized forms are also found in your museums. Suppose for example in our Central Museum Delhi, so there is a fossil of dinosaur. और क्या होता है ना, फॉसिल के बाद there were some
चार्ट्स, कुछ फ्लो चार्ट ऐसे भी वो उसको चिपकाते हैं जो बच्चों को देखना ठीक है, ये उसका कुछ आइडिया आएगा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। कभी कभी उसका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग वो बच्चे लोग के लिए सिनेमा भी वो प्ले करते हैं। सो ज्यादातर ये म्यूजियम का काम क्या है ना, ये टैक्सोनॉमिकल पर्पस के लिए हमको हेल्प करता है। नहीं ठीक है, हमको पता चलेगा ये एनिमल थे, फॉसिल फॉर्म, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स व्हिच यू हैव नॉट सीन। सो उसका ठीक है, वहां पे उसका फॉसिल है, उसको जाके हमको पता चलेगा नहीं नहीं ये एक्चुअली वो एनिमल था। या फिर ये जो व्हेल का स्केलेटन है, शार्क का स्केलेटन है, हमको पता चलेगा एक्चुअली व्हेल ऐसा दिखता है, शार्क ऐसा दिखता है। सो ये म्यूजियम के बाद तुम्हारा क्या आया ना, योर नेशनल सॉरी योर जूलॉजिकल पार्क और जू। जूलॉजिकल पार्क और जू, ये क्या है, ये जो जूलॉजिकल पार्क और जू है ना, ये भी वही है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड ना, रेफरेंस पर्पज। where live animals, रेफरेंस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं जहां पे लाइव एनिमल्स आर केप्ट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लाइव एनिमल को हम लोग रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे और कुछ चीज होता है। यहाँ पे हमारा जो इथोलॉजी का कुछ प्रोग्राम्स है, इथोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, वहां पे भी चलता है। हमारा जो कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जब लेट्स से योर नंदनकानन बट योर जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, व्हाइट टाइगर प्रोग्राम इज आल्सो गोइंग ऑन। सो वहां पे क्या होता है ना, ethological work, then feeding behavior, patterns, habitat। ये जो चीज है, एक एनिमल के बारे में मुझे पता चलेगा। सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, आई एम गोइंग टू सी ए टाइगर, ओके, मुझे पता चलेगा एक्चुअली टाइगर ऐसे हैबिटेट उसका है, वहां पे ऐसे रहता है। जिराफ होगा, जिराफ को वो जो जिस बैरिकेड में जिराफ होगा उसको देखने से मुझे पता चलेगा नहीं नहीं इट्स ए जिराफ एंड इट्स हैबिटेट इज लाइक दिस, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं ex situ conservation। ex situ कंजर्व करके रखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, वन इज इन situ, सेकंड वन इज ex situ कंजर्वेशन। इन situ का मतलब क्या है ना, कंजर्वेशन within natural habitat, कंजर्वेशन विदिन नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है, जो एनिमल का, वाइल्ड एनिमल का जो उसका जगह ओरिजिनल प्लेस है, वो जहां पे वो हैबिटेट है, वो जहां पे रहता है, वहीं पे उसको कंजर्व करना। वी विल मेक सम स्ट्रिक्ट लॉज एंड पॉलिसीज टू कंजर्व, टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया। बट इन केस ऑफ ex situ कंजर्वेशन वी विल ब्रिंग देम, हम लोग उसको लेके आएंगे, वो हमारा मेहमान है। एंड वी विल प्रोवाइड सराउंडिंग ए एनवायरनमेंट ऑफ देयर ओन, उसका जो एनवायरनमेंट होगा, उसका जो सराउंडिंग्स होगा, उसी का जैसा हम उसको एक सराउंडिंग या फिर उसको एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं आगे। इफ वी आर एबल, अगर इसमें हम सक्सेस हो गए, देन इट्स ओके दैट पर्टिकुलर एनिमल विल बी अडैप्टेड टू आवर कंडीशन। इफ वी कैन नॉट, दैट एनिमल में die। So there are two types of conservation strategies, in situ and ex situ। in situ का क्या हुआ, so एग्जाम्पल क्या है in situ का, नेशनल पार्क, सैंक्चुअरीज, ये सब in situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। सो ex situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जू, योर
बोटानिकल गार्डन, समझ में आ रहा है ये सब? सो नाउ लेट्स आफ्टर जूलॉजिकल पार्क वी विल डिस्कस अबाउट योर की। की का मतलब क्या है ना? इट इज अ डिवाइस used to identify, it is a device used to identify each species, identify each species in a group of organisms. Device used to identify each species in a group of organisms. ओके, उसके बाद क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब क्या है? सपोज इट्स ए पूल, यहाँ पे एक पूल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। की का मतलब है एक एक ऑर्गेनिज्म को वो आइडेंटिफाई करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबको आइडेंटिफाई करेगा। इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की में क्या होता है ना? कॉपलेट होता है, कॉपलेट, ये टर्म को याद रखना। ईच कॉन्ट्रास्टिंग पेयर इन ए की इज नोन एज कॉपलेट। ये की में क्या होता है ना? दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है, दो। फॉर एग्जांपल, सपोज आई गॉट वन फिश, I got one new fish, I don't know what type of fish it is, so I have to use some keys. इसका contrasting character क्या है? So पहला ना, whether it has fins or it has limbs, एक कैरेक्टर है, मुझे देखना पड़ेगा उसमें फिन्स है या फिर उसका लिम्स है। सो दैट मीन्स इन कॉपलेट यू हैव टू एक्सेप्ट वन, you have to reject one, that is the acceptance of one and the declination or the reject of one. So this is known as couplet, and each statement in a key is known as a lead. Lead. Each statement, ये लीड में क्या होता है? दो कैरेक्टर होता है, वन इज प्लस, वन इज एक्सेप्टेंस, अनदर इज रिजेक्शन। वन इज एक्सेप्टेंस, अनदर इज रिजेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या? कॉपलेट। ऐसे करके तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन होता है। पता चल रहा है क्या की क्या है? सो उसके बाद जो ये जो पांच तुम्हारा गया टैक्सोनॉमिकल आर्ट, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल आर्ट्स। उसके बाद तुम्हारा क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट्स। फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट्स। ये कैसे हेल्प करता है? फ्लोरा कैसे हेल्प करता है ना? It gives a brief idea about your habitat. It gives a brief idea about your habitat, distribution pattern, etc. of a plant. ये प्लांट का हैबिटेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का क्या है, एक जगह पे इन ए गिवन एरिया। Suppose I am writing one book, so I have to write the flora of Odisha. If I am writing on the book on animals, then I have to write the fauna of Odisha. Flora means plants, fauna means animals. Odisha, here it's a particular area or zonation, and उसमें habitat, distribution pattern. Distribution pattern means ओडिशा में कहाँ ये मिलता है, कटक, भुवनेश्वर, खोर्धा, मालकानगिरी, केउंझर, मयूरभंज, कहाँ ये मिलता है, उसको हमको लिखना वहाँ पे
पड़ेगा। फ्लोरा के बाद तुम्हारा जो दूसरा आएगा, दूसरा क्या है, मैनुअल्स। मैनुअल कैसे हेल्प करता है, ये भी एक एरिया में जितना भी आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन है, इन एन एरिया, एक एरिया में जितना भी आइडेंटिफाइड स्पीशीज है उसको वो नोट डाउन करके वहां पे लिखा हुआ होगा। आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑफ एन एरिया। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है वन। ये क्या करता है, वन टैक्सॉन, एक टैक्सा। फॉर एग्जांपल मोनोग्राफ ऑन रेप्टाइल्स, मोनोग्राफ ऑन बर्ड्स, मोनोग्राफ ऑन मैमल्स। ये जो एक टैक्सा है, एक टैक्सा के ऊपर वो एक ब्रीफ आइडिया देता है, उसका हैबिटेट क्या है, वो उसका कुछ कुछ जगह पे उसका पिक्चर भी रहा होगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ पे वो मिलता है, ये ऐसा कुछ वहां पे लिखा होकर रहेगा। उसके बाद जो आता है वो लास्ट वाला, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होगा, ये ज्यादातर यहाँ पे क्या होगा, प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट एंड उसका हैबिट क्या है, हैबिट, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ये जो उसका जो कॉमन चीज है, कॉमन कैरेक्टर्स है, उसी के बारे में वहां पे ये कैटलॉग में वो नोट डाउन करके रखते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, व्हाई यू आर स्टडीइंग इट? सो द फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टर। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मॉर्फ का मीनिंग है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी। देन एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड एनिमल और ऑर्गेनिज्म। उसको अंदर से दिखना है, उसका जो भीतर का हिस्सा है क्या क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन्स क्या है, उसको हमको देखना है। देन हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये याद रखना, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। योर जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स और हेरेडिटरी कैरेक्टर्स। देन फिजियोलॉजी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे जितना भी बॉडी पार्ट है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। देन एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, फर्स्ट गैमेट्स, गैमेट के बाद तुम्हारा है जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद तुम्हारा क्या होता है, जो फुल्ली फॉर्म्ड योर जो एडल्ट आता है। ये जो डेवलपमेंटल की जितना भी स्टेजेस है उसके बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। देन इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसको हम बोलते हैं द रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये जो ऑर्गेनिज्म है जितना भी, उसका एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुकात है, उसको पढ़ने के लिए हमको इकोलॉजी चाहिए। देन एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वी कैन से दैट इट्स डक्टलेस ग्लैंड्स। देन पैलेंटोलॉजी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। देन टैक्सोनॉमी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन। देन पैथोलॉजी, आई थिंक वी ऑल हैव गॉन समडे टू पैथोलॉजी, किसी ना किसी को तो रोग हुआ है, डिजीज हुआ होगा। सो पैथोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर अदर फंगल डिजीजेस है, फंगस है, या हेलमिंथेस है, ये जितना भी तुम्हारा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है उसको पढ़ने का जो ब्रांच है उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। देन योर माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है,
Now these are the organism which we cannot see in naked eye. खाली आंख से उसको हम नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। Then exobiology, लाइफ ऑन आउटर स्पेस, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलियंस है, बहुत सारे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। उसको पढ़ने के लिए जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। देन योर मेरीन जूलॉजी और मेरीन बायोलॉजी उसको हम बोलते हैं योर स्टडी ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म, समुद्र के बीच जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको पढ़ने के लिए जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं मेरीन बायोलॉजी, और मेरीन जो जूलॉजी का जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं मेरीन जूलॉजी। ये स्टार्ट विथ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, और वी कैन से दैट दीस आर नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स के बारे में या फिर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसी को पढ़ने के लिए वो जो ब्रांच है उसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। देन जेरंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड। ये क्या है ना, आज के ज़माने में ये एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है जेरंटोलॉजी। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका एज 50-55 हो गया लेकिन पता नहीं चलता एक्चुअली उनका एज इतना है, या फिर कुछ आदमी का एज बहुत कम होगा 15-20 होगा लेकिन उनका जो बॉडी का जो अपीयरेंस होगा वो ऐसा लग रहा है कि दैट फेलो इज मोर एज्ड, वो 30-40 साल का ऐसे वो दिखेगा। सो ये जो ब्रांच है उसको हम जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। देन जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन और स्टडी ऑफ एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है ना। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स और स्टडी ऑफ कैंसर। ये जो कैंसर का जो सेल है उसको हम बोलते हैं ऑन्कोसेल्स, और वी कैन से दैट दीज आर oncogenic cells. Then melanology, study of melanin pigment. ये पिगमेंट क्या करता है ना, ये पिगमेंट हमको जो कौन काला होगा या फिर कौन गोरा होगा ये डिटरमाइन करता है। जिसके बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होगा वो थोड़ा डार्क इन नेचर, उसका जो बॉडी का अपीयरेंस थोड़ा डार्क रहेगा। जिसका ये जो मेलानिन पिगमेंट कम होगा उसका अपीयरेंस थोड़ा व्हाइटिश रहेगा। देन लिम्नोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी। ये क्या है ना, ये जितना भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जितना भी जीव फ्रेश वाटर में रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में स्टडी करना। स्टडी को हम बोलते हैं लिम्नोबायोलॉजी। देन डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, एक एरिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन क्या है ना, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज का ग्रुप है दैट आर शेयरिंग सिमिलर फूड, वो एक सिमिलर टाइप का उनका नेचर है, सिमिलर फूड वो शेयर करते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक डेफिनेट टाइम होगा, एक डेफिनेट स्पेस होगा। लेट्स से आई विल से दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन किसका, टाइगर का। इंडिया एक एरिया है, बाउंड्री वाले का रहेगा, एंड वो ईयर 2020। Then hygiene, maintenance of good health, maintenance of good health। आज के जमाने में ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है सो बोलते हैं ना यू जस्ट मेंटेन ए प्रिपेयर हाइजीन, ए प्रॉपर हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है, वो हाइजीनिक कंडीशन विच मीन्स हमारे जो हाथ या फिर बॉडी को साफ सुथरा रखना है, या फिर हमारे जो सराउंडिंग्स है उसको साफ सुथरा रखना है। देन एपिडेमियोलॉजी, ये क्या है ना, इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स इन्फेक्ट करते हैं उसका जो ब्रांच है, ये पैरासाइट्स के बारे में, दैट मींस दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर फूड। सो ये जितना भी ब्रांच गया, दीज आर ऑल एक्चुअली प्योर ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जूलॉजी। नाउ योर कम्स योर अप्लाइड ब्रांचेस। ये अप्लाइड ब्रांच क्या है ना, ये जो ब्रांच है ये हमको एडिशनली हेल्प करते हैं, दैट मीन्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज। ये क्या है पहला अप्लाइड ब्रांच, एपीकल्चर। एपी का मतलब क्या है, योर हनी बी, दैट मीन्स योर कल्चर ऑफ हनी बी। देन सेरीकल्चर, सेरी का मतलब क्या है, सिल्क वर्म, और उसको साइंटिफिकली बोलते हैं बोम्बाइक्स। हनी बी को बोलते हैं एपिस। ये
सिल्क वर्म के कल्चर के बारे में पढ़ने को जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ये जो दो ब्रांच बहुत फेमस है। ना पीसी कल्चर उसको हम बोलते हैं फिशरी, वी कैन आल्सो से दैट फिशरी कल्चर ऑफ फिशेस, नॉट इट्स एडिबल फिशेस। एडिबल मीन्स जो फिश को हम खाते हैं उसी को कल्चर करना है। देन पिगेरी, rearing of pigs, here we cannot say that it's culture of pigs, it's rearing of pigs, उसको हम पालना है, उसको कल्चर नहीं करना है। then lark culture, culture of lark insects for lark। dairy, dairy means rearing of cows, cow को rear करना है, cow को पालना है for milk and its other products। poultry, rearing of chickens for meat and egg। pearl culture, culture of pearl, pearl को कल्चर करना है। then agronomy, agro का मतलब क्या है? that means crop, study of crop production, crop कैसे प्रोडक्शन होता है इसको पढ़ना है। horticulture, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये भी आज के जमाने एक बहुत अच्छा ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। देन सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ये क्या है? ये ब्रांच क्या है ना? योर कल्चर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, फॉरेस्ट में जाके वो जो ट्री है उसको लगाना है या फिर फॉरेस्ट्री करना है। देन फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो फार्मासिस्ट बोलते हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू योर फार्माकोलॉजी। ये तुलसी है, बेल है, एलोवेरा है, ये जितना भी मेडिसिनल प्लांट है उसी के बारे में पढ़ना है। देन योर क्रायोबायोलॉजी, ये एक टेक्निकल टर्म है क्रायोबायोलॉजी, और उसको हम बोलते हैं, ये जो मेथड क्रायोबायोलॉजी का उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट मींस -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम, जो मीडियम होगा क्या होगा? लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम में हमको ऑर्गेनिज्म को या फिर कोई प्लांट को हमको उस वहां पे प्रिजर्व करके रखना है। सो दीज आर ऑल दी अप्लाइड ब्रांचेस, ओरिएंटेड branches, that means these branches are directly related to some organisms। so first one is protozoology, that means it is related to protozoa, the study of protozoa is known as protozoology। then helminthology, study of helminthes, helminthes, there are two types of helminthes, platyhelminthes and nemathelminthes। platyhelminthes is known as flatworms and nemathelminthes are the roundworms। now entomology, study of insects, remember this group insecta is the largest group of animal kingdom, that is in every 10 animals 7 are insects। then ichthyology, study of fishes। I have told you that fishery is the study of edible fishes, but ichthyology is the study of all fishes, whether it is edible or non-edible। then malacology, study of mollusca। herpetology, reptiles, all reptiles comes under this। it may be a crocodile, it may be a snake, it may be any other reptile, it may be dinosaur। then ophiology or serpentology, study of snakes, this branch comes under herpetology। ornithology, study of birds। mammalogy, study of mammals, mammals के बारे में पढ़ने को बोलते हैं। saurology, lizards, study of lizards is known as saurology। then your acarology, acarology का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स, टिक्स माइट्स के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं acarology। then conchology, सेल्स ऑफ मोलस्का, ये जो मोलस्का के सेल्स के बारे में पढ़ना है, सेल्स कैसे बना हुआ है,
ज्यादातर ये जो मोलस्का का सेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। सो इसी के बारे में पढ़ना है, शेप क्या है, साइज क्या है, कैसे बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोलॉजी बोलते हैं। देन एंथ्रोपोलॉजी, ये एक ब्रांच है, ये साइंस का एक ब्रांच है। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का जो बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले मैन क्या करता था, ये जो मनुष्य है ये पहले तुम्हारे इट लिव्स इन ट्रीज, फॉरेस्ट्स इन ट्रीज, बट आफ्टर दैट इट सिविलाइज्ड, इट गेट सिविलाइज्ड, वहाँ पे घर बनाना शुरू किया वो, और जो दूसरा कॉलोनी बनाना शुरू किया। सो ये कैसे हुआ, ये सब पढ़ने को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। देन आराक्नोलॉजी, स्पाइडर्स के बारे में पढ़ने को। लेपिडोप्टेरियोलॉजी, बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरियोलॉजी। देन पैराजूलॉजी, स्टडी ऑफ स्पंजेस। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही पता चलता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। नेमाटोलॉजी, nematodes, or we can say that nemad helminthes such as your ascaris. Nidology, study of nidaria. Here it's a nidology, here also it's nidology, but the difference is in its spelling. It's study of bird's nest. Cetology, study of whales, whales के बारे में पढ़ना है। एरोबायोलॉजी, जितना भी फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है, इट में बी ए बर्ड और इट में बी इंसेक्ट, सब के बारे में पढ़ने को एरोबायोलॉजी कहते हैं। देन ऊलॉजी, बर्ड्स एग, अंडे के बारे में पढ़ना है। बाट्राकोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रॉग्स, ये याद रखना। कार्सिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रूस्टासियंस, क्रूस्टासियन का मतलब क्या है, जो क्रैब्स है उसको क्रूस्टासियंस बोलते हैं। माइर्मेकोलॉजी, एंट्स, एंट्स के बारे में पढ़ना है, एंट्स एंड एंट ईटर्स। देन इथनोलॉजी, ह्यूमन रेस का सिविलाइजेशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी को पढ़ने को हम बोलते हैं इथनोलॉजी। देन स्पेलियोलॉजी, केव्स एंड केव ड्वेलर, ये जो एनिमल्स गुफा में रहते हैं, केव में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये जो ब्रांच है उसको पढ़ने के लिए स्पेलियोलॉजी बोलते हैं। ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस, दैट मींस दिस ब्रांचेस relate with the organs of our body. So first one is osteology, that means study of bones. ये bones के बारे में, जितना ये bones है, how many bones are there in our body? 206. In newborn baby it's 300. Chondriology, study of cartilage, ये bone का छोटा भाई है, यहाँ पे है, नाक पे, कान पे cartilage है। Syndesmology, joints and लिगामेंट्स, जितना भी जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, इसी के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं सिंडेस्मोलॉजी। देन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स, वेरियस टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। देन आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो आर्थ्रोलॉजी, syndesmology, these are related, but here it's only joints, here joints along with your ligaments. Trichology, study of hairs, hairs के बारे में पढ़ना है। Rhinology, study of nose और olfactory organ, जो सूंघने में हेल्प करता है। Ophthalmology, study of eyes, आइज के बारे में पढ़ना है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो आई डॉक्टर है ना उसको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। योर गाइनेकोलॉजी, हम बोलते हैं ना गाइनेकोलॉजिस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो ब्रांच है, जो आदमी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पेशलिस्ट है उसको हम बोलते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजी, सिमिलरली इट्स रिलेटेड टू योर स्किन, सेम बात है, इसके ऊपर जिसका स्पेशलाइजेशन होगा उसको हम बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। देन हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है और उसका जो काम क्या है, उसी को पढ़ने को जो ब्रांच है उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। देन हेपाटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, और वी कैन से दैट इट इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स।
सोनोलॉजी स्टडी ऑफ हियरिंग, हियरिंग बारे में सुनना है, ये जो स्टडी करना है, ये जो कार में जो लगाते हैं ना हियरिंग मशीन्स, ये जितना भी ये सब के ऊपर जो सोनोलॉजिस्ट है इसके ऊपर काम है। देन नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, इफ somebody has some kidney problems he or she must have to go for any nephrologist। ओडोंटोलॉजी दांत के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ टीथ। यूरोलॉजी यूरिन रिलेटेड डिजॉर्डर, यूरिन के रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर है उसी को पढ़ने को हम बोलते हैं यूरोलॉजी। ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर, कान के बारे में पढ़ना है। एंजियोलॉजी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। एंटरोलॉजी गट, ये जो इंटेस्टाइन है उसी के पढ़ने को हम बोलते हैं एंटरोलॉजी। कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, सेल में एक न्यूक्लियस है उसी को पढ़ने का जो ब्रांच है उसको बोलते हैं हम कैरियोलॉजी। एनसेफालॉजी इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन का दूसरा नाम है एनसेफालोन, इसी हिसाब से उसका जो ब्रांच है उसको हम बनाया एनसेफालॉजी। ओल्फैक्टोलॉजी स्टडी ऑफ स्मेल और वी कैन से दैट इट्स नोज। फोनोलॉजी स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन, ये जो स्पीच थेरेपी करते हैं ना ये एक फोनोलॉजी का अंश है। कालोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ये जो ह्यूमन ब्यूटी के ऊपर जो जिसका स्पेशलाइजेशन है उसको हम बोलते हैं कालोलॉजिस्ट। हिप्नोलॉजी स्लीप के बारे में पढ़ना है। सिटोलॉजी फूड डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ना है। काइनेसियोलॉजी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हमारे लोकोमोशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, इसी को पढ़ना को हम बोलते हैं काइनेसियोलॉजी। एंड्रोलॉजी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव बारे में था तुम्हारा गायनेकोलॉजी, मेल के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है उसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजिस्ट। वेनेरोलॉजी स्टडी ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स, गोनोरिया एटसेट्रा, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हेपेटाइटिस बी, ये जो भी है उसी को पढ़ने में जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं योर venerology. So these are all about your organ oriented branches. So now the last branch is interrelated branches. So आज के जमाने में every branch, एक branch दूसरे branch से connected. We can say that physics is related to our biology, biology related to your chemistry, chemistry is related to your biotechnology. So all branches are interrelated. So the first branch of interrelated branch is biophysics. Biophysics का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स ऑन बायोलॉजी। फिजिक्स का जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, अगर वो बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई होगा उसी ब्रांच को हम बोलेंगे बायोफिजिक्स। देन बायोकेमिस्ट्री, सिमिलरली अगर केमिस्ट्री का जो रूल्स रेगुलेशंस या लॉ है अगर वो बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई होगा उसी को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। देन बायोमेट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स जो है वो बायोलॉजी के ऊपर अप्लाई होगा उसी ब्रांच को हम बोलेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। देन रेडियोएक्टिव बायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ, ये जो यूवी रेडिएशन से एक्सरे गामा रे, ये जो रेडियो एक्टिविटी का लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसी को स्टडी करना, जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं रेडियो बायोलॉजी। देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये ब्रांच, ये जो कोर्स है यहाँ पे क्या होता है ना, डिजाइनिंग ऑफ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, ये जो आर्टिफिशियल लिम्स होता है या फिर डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है कैसे बनाते हैं, ये जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये सब पता चलेगा। देन बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बहुत जाना पहचाना ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर जूलॉजी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर मेकिंग कमर्शियल यूजफुल प्रोडक्ट, आजकल जितना भी इंडस्ट्री है लगभग हर इंडस्ट्री ये जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड का यूज करते हैं।
The taxidermy already I have discussed in your taxonomical ad in that museum. स्टफिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल को स्टफिंग करना है और उसका जो प्रिजर्वेशन टेक्निक है उसी को वहां पे पढ़ाते हैं, कैसे प्रिजर्व करना है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। देन ये जो ब्रांच गया तुम्हारा, ये ब्रांच के बाद और भी कुछ छोटा छोटा ब्रांच है जिसको हम जानना चाहिए। पहला है ट्रोमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ वुंड्स। मेडिकल पे लिखा होगा ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा सेंटर का मतलब क्या है, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई वुंड हो गया, छोटा छोटा एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो आदमी वही ट्रोमा सेंटर में जाएगा। देन सिटेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑकवर्ड कैरेक्टर्स। ऑकवर्ड कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, वन इज इनर्ट कैरेक्टर, second one is awkward character. That means these are the characters which are transmitted from the parents to offsprings. Then dactylography, study of fingerprints. fingerprints के बारे में पढ़ना है। ये कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो डैक्टाइलोग्राफी पढ़ने से पता चलेगा एक्चुअली ये फिंगरप्रिंट क्या है, कैसे होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आजकल ये तो बहुत कॉमन है, पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट पता करने से, क्राइम डिटेक्शन के लिए उसको हम यूज करते हैं। देन डिस्टेलियोलॉजी, रूडिमेंटरी ऑर्गन। रूडिमेंटरी ऑर्गन क्या है, फॉर एग्जांपल वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है बट दे आर फंक्शनलेस। देन थैलेंटोलॉजी, डेथ। डेथ के बारे में पढ़ना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ, क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। सो डेथ के बारे में जो पढ़ना है उसी को हम बोलते हैं थैलेंटोलॉजी। देन काइरोलॉजी, काइरोलॉजी का मतलब क्या है ना, ये जो ब्रांच है यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम विथ डीफ एंड म्यूट। डीफ म्यूट जो आदमी है उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, उसी को जो पढ़ाने का जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं काइरोलॉजी। देन इटियोलॉजी, कॉज ऑफ ए डिजीज, डिजीज कैसे होता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसी को पढ़ने का जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब इस ब्रांच में पढ़ाया जाता है। देन डिप्लोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विन्स, वन इज आइडेंटिकल, सेकंड वन इज नॉन आइडेंटिकल। सो ये जो आइडेंटिकल ट्विन, दैट मींस इट मे बी टू बॉयज एट अ टाइम और टू गर्ल्स एट अ टाइम, इसी को बारे में पढ़ना है। देन थेराप्यूटिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज, एक डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका मेथड क्या है। सो इसी के बारे में पढ़ने को जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक्स। ओके, आई थिंक you just remember all these branches because during the 2-year course of your biology, so you will more about come across all these terms.